Good afternoon, everyone. Sir. Good afternoon. So today onwards, like today and the Monday, and whatever days we are left with for our uh, practical examination, I think you all have received the schedule of practical timetable. It's on 18th of this month, few days after. सर बट उस टाइम टेबल में जूलॉजी का टाइम मेंशन नहीं एक नया आ गया होगा ना, रिवाइज्ड आ गया होगा। एक रिवाइज्ड वाला भी एक आया नहीं आया क्या पोस्ट आपको? नो सर। नो सर ठीक है, मैं डाल दूंगा। वो एक्चुअली क्या है कि सबसे टॉप में जो चार्ट था ना, चार्ट में सबसे ऊपर में zoology का लिखा था, एंड दैट वाज फ्रॉम 12 to 1, जैसा मेरे हमेशा होता है। एक्चुअली क्या है कि शेड्यूल सेम ही है, सिर्फ डेट्स बदली हैं। सो इट्स ऑन 18th एंड इन द at noon 12 o'clock we'll be having our practicals 12 to 1. ठीक है, it will be like, you all know it, you must have appeared for the 5th sem practicals also, so you know how we have to perform the practicals. As we haven't like you haven't visited the department, you haven't performed any practicals, any experiments, and you have not seen any slides also. So but I'll be posting those slides which are like will be asked in the examination. Today we do not have the internet connectivity in our department, so I would not be able to post today. Maybe tomorrow or on Monday, whenever the net retrieves, I'll do that. So you'll be having few histological slides like kidney, liver, ovaries, gonads, and some uterus, placenta. The cross sections will be like for your study. So I'll be posting those pictures, and I think you can get the comments over it. कमेंट्स आप लोग खुद लिख सकते हैं, मुझे लगता है मैं आपको सेक्शंस दे दूंगा, because they would be helpful for identifying those sections which come in your examination. And the physiological experiment you need to write. Do you all have any older records? No? नो सर। नो सर नो Okay, then I'll be posting the content also, the experiments. Only physiological experiments we need to understand, or that will come in your examination, will be of sugars, carbohydrates, and let me see, it's I suppose the urea. Okay, and what else? Urea, sugars, albumins, and creatinine. So I'll be giving you the experimental procedure for creatinine, albumin, and urea. You know what is albumin? Albumin क्या है मालूम है आप लोगों को? नहीं, नहीं मालूम। वेरी बैड। फाइनल ईयर में आ गए, हमें एल्बुमिन क्या है नहीं मालूम। तीन हाँ, प्रोटीन है। कहाँ रहता है, कहाँ होता है हमारी बॉडी में? सर लिवर। लिवर में रहता है। मतलब ओके, प्रोड्यूस होता है। क्या बोले, क्या पता है? लिवर में प्रोड्यूस होता है। लिवर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो हैं वो लिवर में ही बनते हैं। तो लिवर तो एक सोर्स है, एक साइट है जहाँ पे मैक्सिमम प्रोटीन्स बनते हैं, क्योंकि वो हमारा कहना चाहिए ना, वो लिवर सेल्स ही हैं जहाँ पे हमारी एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट करके एटीपी के फॉर्म में रखते हैं। सो सभी
मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म बोलना चाहिए, एनाबॉलिज्म जो भी है, वो सब हमारे लिवर में ही होता है। तो ऑफ कोर्स जब इतने सब फूड स्टफ्स का हमारा कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म होता है, तो you need many enzymes, and those enzymes need to be synthesized and manufactured, and that synthesis or manufacturing is done in liver only. So maximum proteins or albumin, sorry, enzymes are synthesized in liver only. Well, you have a big connective tissue. What is that? The largest connective tissue? Blood. Yes, good. Blood is the largest connective tissue, and it has got two components. What is the one is the fluidic component, another is cellular component. Cellular component, RBCs, WBCs, and platelets, right? And in the fluidic content, we have watery portion in which most of the molecules and substances are dissolved. They may be not dissolved exactly, they are in the colloidal state. So they may be proteins, other compounds, ions, or bicarbonates, carbonates, nitrates. Many compounds are there. Those who are required to be transported to different tissue levels for different activities. So blood is used for that purpose. It is a carrier. So blood is a carrier. So carrying, the carrying functionality is being performed by the protein molecules present in the blood. And it's around 7 grams per 100 ml. 7 grams of protein is present in blood, and that portion of protein, total protein, contains three types of proteins primarily. One is albumins, the second one is globulin, and third one is fibrinogen. You all know fibrinogen is used in clotting of blood, which helps in controlling the bleeding of blood if some vessel is been hurt or cut. And globulins and albumins are that kind of protein which are usually called carrier proteins. Carrier means they carry some enzyme or some product from one place to another. And why these two types of proteins, that albumins and globulins? Because globulins might, some carrier proteins themselves involve in some kind of functionality or activity. But albumins are mainly, they are the carriers. Albumins are straight chained protein molecules. They do not have any cross linking. They do not have any, the globular structure. The globulins are called so because they have a globular structure. Because the straight chain compounds, straight chain protein molecules, they get the disulfide linkages between cysteine, cysteine, isoleucine, isoleucine, and then they get, folded or pleated or made closer so that their structure becomes a bit compact and a bit like globulins, roundish structures. So that way, globulins are also specifically um, carrier proteins, but they carry usually the compounds like steroids, which are very smaller in size and shape, and the steroidal derivatives, the different types of derivatives of main cholesterol or the cholesterol derivatives has different steroids. They could be our sex steroids or some the digestive steroids or some respiratory steroids. These steroids are usually carried by these globulins. But rest of the compounds which are to be transported, they need not require the globulin type of proteins. They can be usually carried by albumins, which are usually straight chain protein molecules. So albumin is a major portion in the blood. So wherever the albumins are, though they are synthesized in liver, but they are abundantly present in the blood, which usually performs the function of carrying compounds from one place to another. Even the albumins carry steroids, but the bigger steroids
like this and androgens. Androgens, the male steroids and their derivatives. Anyways, सो हम ये प्रोटीन जो है ब्लड में उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी और टिश्यू में प्रेजेंट है तो वो भी देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में है, इट्स एन डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिया, डिटर्मिनेशन यानी कि कितनी क्वांटिटी में कहाँ प्रेजेंट है। You all know there are two types of estimations. One is quantitative, another is qualitative. Qualitative मतलब हम उसका presence check करते हैं, whether it is there or not. And in quantitative, we try to quantify the compound or the required material to be estimated. तो वो हम जब क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, द प्रोटोकॉल जब हम उसको मेजर करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सॉरी, तो हम उसे कहते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बट आई थिंक हियर we have the protocols for qualitative analysis whether albumins are present in the sample or not. So if at all we give you the blood sample, you would be getting the positive result for the albumin. And albumin is a protein. You must be knowing the classification of protein also. When there are two amino acids joined together, they are called what? When more than two are joined, they are called what? And many amino acids are joined together, what are they called? You know that? Any idea? Single monomer is called amino acid. When two amino acids join together, what are they called? Yes? किसी को नहीं मालूम? अच्छा, classification में on the number of amino acids they comprise of. So if there are two amino acids together, they are called, nobody knows it. So they are joined by peptide bond. Yeah, very true. They are joined by peptide bonds. Very right. When there are only two amino acids which are joined by a peptide bond, what are they called? Under what classification, under what category they come? They are called peptones, because that CONH bond होता है जिसको हम बोलते हैं कीटोन वाला बॉन्ड है, इसलिए हम उसको peptones बोलते हैं. And when there are amino acids more than 2 and less than 20, more than 2 and less than 20, that means a protein molecule which has got amino acids in sequence but they are not more than 20 and more than 2, they would be called peptides. Okay. And from 20 to 200 amino acids, when a protein molecule which has got more than 20 amino acids but less than 200 amino acids, they are called polypeptides. Okay. And if the protein molecule which has got more than 200 amino acids, they are called proteins. Okay. So the protein word is usually, when the protein word was established or coined, they used to find all the protein molecules more than 200, 300, 400 amino acid chained molecules. That's what they used to call protein to them. But later, when they came to know there are smaller protein molecules also which have got less amino acids or less than 200, so they were called as peptides. But further they have classified it. If it is between 2 and 20, they are called peptides, and it is between 20 and 200, they are called polypeptides. And if it is only two amino acid chain, then we would call it as, either you can call it as peptone or peptide also. That's not a problem. 2 से लेकर 20 तक है, 2 को भी आप पेप्टाइड बोल सकते हैं. ठीक है. एनीवेज, तो ऐसे बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैं, उनमें जो अमीनो एसिड्स हैं, वो इसी नंबर के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं. और आपने सुना होगा कि बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोपेप्टाइड्स बोलते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब जो न्यूरॉन सिग्नल्स को, इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं, उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं. एंड न्यूरोपेप्टाइड्स मतलब वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो
न्यूरॉन्स में या फिर ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अपना पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है, वो प्रोटीशियस हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, या कभी कभी रिलीजिंग फैक्टर्स को रिलीज करता है, ताकि वो रिलीजिंग फैक्टर ब्लड के थ्रू जाए कहीं पे और फिर किसी दूसरे ग्लैंड को इंस्टिगेट करे या फिर स्टिमुलेट करे टू प्रोड्यूस ए हार्मोन और एंजाइम। तो इस प्रकार से तो उनको हम यूजुअली जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल, हम उसको न्यूरोपेप्टाइड्स बोलते हैं। अदरवाइज नॉर्मल पेप्टाइड पेप्टाइड बोलना भी गलत नहीं है। सो ये चीज़ें कुछ हैं जो प्रोटीन्स के बारे में। तो हम तो एल्बुमिन को चेक करते हैं, तो सभी प्रोटीन्स को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो दो अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसको आपको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, या पेप्टोन कंपाउंड फॉर्म होता है, CONH बॉन्ड बनता है। तो उस बॉन्ड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। देयर आर मेनी मेथड्स। एक ब्रोमोफिनॉल ब्लू करके एक डाई है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं इफ एट ऑल अ पेप्टाइड बॉन्ड इज देयर, the compound will give a blue color with bromophenol blue। और जैसे ही ब्लू मिला मतलब कि वो समझ में आ जाता है कि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड है मतलब अमीनो एसिड्स का चेन है। दैट वे वो एक तरीका है। और फॉलिंग वू मेथड है, फॉलिंग वू मेथड कॉपर सल्फेट यूज होता है, वो भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम प्रोटीन्स को एस्टिमेट करते हैं। तो फॉलिंग वू मेथड जो है वो यूजुअली क्या है, इट्स अ क्वांटिटेटिव मेथड। वो हम उसके कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। यू मस्ट बी नोइंग, जब भी हमें किसी किसी को क्वांटिफाई करना है तो यूजुअली डिटेक्शन जो होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे होता है, यूजुअली हम कलर बेसिस पे करते हैं, कलर बेस से करते हैं। लाइक कोई हमने डाई दिया उसको, तो डाई होल्ड करता है पर्टिकुलर पेप्टाइड को या फिर पर्टिकुलर बॉन्ड को, तो हम उसको एस्टिमेट करते हैं कि इट इज प्रेजेंट ओवर देयर, तो हाउ मच क्वांटिटी इट इज प्रेजेंट। सो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हमें कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ते हैं। तो वो जो फॉलोइंग बुक की जो बात कर रहा था, फॉलोइंग बुक में हमें कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, उन सबको एस्टिमेट करते हैं कि भाई इतना प्रोटीन हमने डाला, सपोज 1 मिलीग्राम डाला तो इतना कलर देता है, 2 मिलीग्राम डाला तो ज़्यादा डार्क कलर आएगा, जो कलर ह्यू है वो बढ़ जाएगा। तो दैट वे एंड दिस कलर्स आर डिटेक्टेड थ्रू टू डिफरेंट टाइप ऑफ two why two you can say there are instruments by which we can detect the color. The color determining instruments are called colorimeters, and later they have been modified into photometers, and after that they are further advanced and modified into spectrophotometers. So colorimeter is a simple basis on which the color which we can see, those colors which we can see। तो उससे क्या होता है कि नॉर्मल कलर उस पे, नॉर्मल लाइट उस पे इंसिडेंट होती है उस कंटेंट पे, यू ऑल नो इट। जो भी कलर हम देख रहे हैं, दैट इज द ओनली कलर विच इज, दैट इज द ओनली फ्रीक्वेंसी विच इज बीन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो जब हम सोल्यूशन लेते हैं जिसमें कि हमने पेप्टाइड बॉन्ड्स को कलर किया है और वो ब्लू कलर दे रहा है, तो उसका जो क्वांटिटी है, जो मेजरमेंट या फिर कहना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ दैट कलर, वो हमें बताता है कि वह कितना क्वांटिटी प्रेजेंट होगा। जब हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं तो हम उसमें नोन क्वांटिटीज को हम रखते हैं, जिससे कलरीमीटर पे हमें वो एक पर्टिकुलर रीडिंग देगा। सपोज करो कि ब्लू कलर देखना है तो हम ब्लू की रेंज में देखेंगे, या फिर दूसरे सॉरी विजिबल लाइट डाल देंगे, नॉर्मल लाइट, तो ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करेगा। उसको हम फिर एक सेंसर के थ्रू सेंस करते हैं कि कितना ब्लू कलर रिफ्लेक्ट हुआ है। If it is more of protein in that solution, then the color intensity will be more. So जैसे कि हमारे पास स्टैंडर्ड्स आ गए, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम। तो ये पांचों अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस के लिए अलग अलग कलर इंटेंसिटीज आएंगी, और अलग कलर इंटेंसिटीज को हम मेजर करते हैं उस कलरीमीटर में। उसकी कुछ वैल्यूज आती हैं जिसको हम ये देखते हैं कि वो कितना एब्जॉर्ब कर लिया, कितना रिफ्लेक्ट कर गया। अभी आपको मालूम है कि ब्लू में शेड्स आते हैं, तो ब्लू में शेड्स क्या आते हैं, मतलब पूरा का पूरा ब्लू रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, कुछ पोर्शन उसमें एब्जॉर्ब होता जा रहा है। तो जब ये आप थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे तो आपने सुना होगा RGB कलर पैटर्न, CMY के कलर पैटर्न, ये चीज़ें सुनी होंगी आपको। तो RGB जो है बहुत बेसिक है, जिसको हम बोलते हैं कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 बेसिक कलर्स हैं जिससे हम इनके मिक्सिंग से हम
डिफरेंट अदर कलर्स बना सकते हैं, आई मीन वी कैन सी देम। तो वो CMY के भी एक पैटर्न है, वो डिजिटल पैटर्न है बाय विच यू कैन क्रिएट कलर कॉम्बिनेशंस। तो अब सपोज करिए पूरा का पूरा ब्लू है कंप्लीट, तो आर और RGB में से आर और जी पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सिर्फ ब्लू जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सपोज करिए एक लाइटर शेड है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कोई और कलर भी उसमें से रिफ्लेक्ट होगा, तभी हमें लाइट ब्लू का इफेक्ट मिलेगा, मे बी ग्रीन और मे बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड रेड। तो इस प्रकार से, तो डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द कलर विच इज बीन रिफ्लेक्टेड एंड दैट इज यूजुअली सेंस्ड इन दैट इंस्ट्रूमेंट, एंड उसको फिर हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ सॉरी द ग्राफिकल मेथड बोलते हैं इसको। स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, उससे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एंड देन फिर हमारा जो सैंपल है वो कितने इंटेंसिटी का है उसको रीड करते हैं, उसकी अपनी एक वैल्यू आती है, तो वो उस वैल्यू के हिसाब से। अब जो सेंसर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं कि एब्जॉर्प्शन, क्या बोलते हैं उसको, एब्जॉर्प्शन एक होता है और एक होता है ट्रांसमिशन। ये दोनों पे डिपेंड होता है। ट्रांसमिशन यूजुअली हम परसेंटेज में बताते हैं कि कितना ट्रांसमिट कर चुका है, यानी कितना रिफ्लेक्ट कर दिया उसने। एब्जॉर्प्शन मतलब कितनी लाइट उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये पहले कलरीमीटर में सिंपल नॉर्मल सी लाइट डालते थे और उसमें देखते थे कि कौन सा कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन कितना एब्जॉर्ब हो गया, कितना ट्रांसमिट हो गया। तो इसके बेसिस पे ही बोर का इक्वेशन है, बोर ऑप्टिकल डेंसिटी जो बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, कि वो लाइट को कितना पास ऑन करने देते हैं, कितना नहीं करने देते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बोर का इक्वेशन है, तो वो उसके बेसिस पे हम क्वांटिफाई कर पाते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट नहीं कहना चाहिए, डायरेक्ट मेथड ही है, डिपेंडिंग अपॉन द कलर दैट इट इमिट्स। और वैसे ही फिर बाद में फोटोमीटर्स आ गए। फोटोमीटर्स में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही लाइट को पास ऑन करते हैं। तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास ऑन करने के लिए हमारे पास फोटोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक, फोटोक्रोमैटिक लैंप्स आते हैं, जो वो जब ग्लो करते हैं तो फिर हम उनको इंटेंसिटी कितना करंट देंगे उसके हिसाब से वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, जो विजिबल रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको वो डिसिपेट करते हैं, जो कि सॉल्यूशंस पे इंसिडेंट होगा, और फिर बाद में हमें वो कलर इंटेंसिटी या फिर कितना रिफ्लेक्ट हुआ है उसको हम सेंस करते हैं। एनीवेज, तो ये फोटोमीटर हो गया। बाद में ऐसा भी पता लगा कि लोगों को कि कुछ कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो विजिबल रेंज के बाहर हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रीजन में है, या फिर कुछ कुछ हैं जो इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन पे हैं। तो वी हैव डेवलप्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि विजिबल रेंज के अलावा यूवी और आईआर के भी रेंजेस को इंक्लूड करता है। That it has got a special type of lamp which emits all types of frequencies of light, either visible and non-visible range में। So that way instruments ऐसे improve होते चले गए, and we have started using these instruments। now अभी instruments automated हो गए हैं, उनमें standard solutions पहले से डन फीड किए रहते हैं, तो ग्राफ बना लेता है कंप्यूटर पे ऑटोमेटिकली। जैसे हमने सैंपल्स रखे, तो सैंपल्स की वैल्यूज को उस ग्राफ पे प्लॉट करके फिर वो ही ट्राइज टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल। तो ये तरीके हैं हम जिससे क्वांटिफाई करते हैं। और उसमें यूरिया के लिए भी एक प्रोसीजर है, क्रिएटिन के लिए भी एक प्रोसीजर है, और अल्बुमिन्स के लिए और शुगर्स के लिए भी है। अब जहाँ तक हम करेंगे, हम यूजुअली क्वालिटेटिव करेंगे, क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स लिखेंगे नहीं। तो वो एक एक्सपेरिमेंट है जो आप लोगों को करना है, यानी कि लिखना पड़ेगा। तो आप लोग ये 18 तारीख से पहले सब लिख पाएंगे, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से कुछ और काम नहीं है आप लोगों को। ठीक है, रिकॉर्ड बुक नहीं भी रहा तो कम से कम आप लिख लीजिए। कोई कंप्यूटर पे लिख सकते तो कंप्यूटर पे लिखिए, पेजेस पे लिख सकते तो पेजेस पे लिख लीजिए, उसको क्लिक कर लीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को पास ऑन करूंगा, उसको आप लोग अपने हैंडराइटिंग में लिख लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट्स में क्रिएटिन का दूंगा, अल्बुमिन का दूंगा और शुगर का दूंगा। ठीक है, यूरिया का देना है क्या देखते हैं। इनमें से कोई कोई एक एक्सपेरिमेंट आपको लिखने को आएगा एग्जाम में, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम 18 तारीख को। और रही बात उसके बाद क्या है, आपको स्पर्म काउंट है। स्पर्म काउंट का सिर्फ मैं एक्सपेरिमेंट जो है, प्रोटोकॉल जो है मैं आपको दे दूंगा, बट वो एग्जाम में नहीं आएगा जहाँ तक समझ के चलिए। ठीक है,
अभी मुझे बताइए कि अच्छा, अब ग्रेजुएशन तो चल रहा है आप लोगों का, तो आप लोगों ने कभी किसी ने परफॉर्म भी नहीं किया होगा। स्पर्म काउंट करने के लिए स्पेशल स्लाइड्स आती हैं जिसमें एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, स्लाइड के बीच में एक गड्ढा होता है, सर डिप्रेशन जैसा रहता है स्लाइड में। वो पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड उसमें आ सकता है, मतलब इट्स अ स्टैंडर्ड डिप, जिसमें सपोज हाँ 1000 माइक्रोलीटर यानी कि 1 ml का, 1 ml बहुत रहता है, 100 माइक्रोलीटर का डिप होगा तो सिर्फ 100 ml ही, या फिर बोले 1 ml का भी डिप हो मान लीजिए, तो सिर्फ 1 ही ml का वहाँ, हाँ 1 ml बहुत होता है ठीक है। एनीवेज वट एवर, तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है, हाँ 100 माइक्रोलीटर्स की जगह डेप्थ होंगी, जिसमें मतलब कि आप उतना ही quantity of fluid जाएगा। तो we make preparations of the semen samples को लेते हैं, उसको फिर बाद में सलाइन में रख के then we keep those one जितनी quantity उस डिप में आ सकता है उतना डालेंगे, and we put a cover slip over it and we observe under the microscope। अब माइक्रोस्कोप में सिंपल काउंटिंग करनी होती है, तो काउंटिंग के लिए आपने यदि आरबीसी डब्ल्यूबीसी का यदि किया होगा या फिर सुना होगा, पता नहीं, आप लास्ट ईयर भी तो नहीं किए थे ना, यदि वो स्लाइड्स होती हैं जिसमें से मार्किंग्स रहती हैं, तो वो बॉक्सेस बने रहते हैं, तो हम वो बॉक्सेस के बेस पे गिनते हैं कि इतने बॉक्सेस का हमने काउंट किया, उसमें इतने मिले, यानी इतना एरिया, और उतने उसकी डेप्थ जितनी है उसके पे भी काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैं वॉल्यूम निकल जाएगा, इतने वॉल्यूम में इतने स्लाइड हमने स्पर्म्स काउंट किए। तो उसमें एक और चीज़ देखी जाती है, मोबिलिटी भी देखी जाती है कि कौन से स्पर्म्स बहुत अच्छे से मूव कर रहे हैं, जो फ्लैजेला अच्छे से मूव कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं, और जो कम है स्लगिश हैं, जो बिल्कुल मूव नहीं करते, ऐसे भी मिलते हैं। तो ये काउंट उसी डिप्रेशन वाले स्लाइड्स में होता है अंडर द माइक्रोस्कोपिकल ऑब्जर्वेशन। एनीवेज ये भी एक है। उसके बाद फिर आपको डिसेक्शन दिया हुआ है। डिसेक्शन में मैं आपको एक फोटोग्राफ भेजूंगा, इसमें आप लोगों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स के डिसेक्शन करना है, किसी भी कल्चरेबल फिश से लिखा हुआ है। हम यूजुअली क्या करते हैं इसमें कि एक फिश लेते हैं जो कि मिल जाए लोकली, क्योंकि अलग से फिश को ला के लैब में रख के डिसेक्शन करना तो मना था। So we usually catch hold of some locally available fish and then we try to usually dissect out the brain and the master gland of endocrine system. Endocrine system, you all know what endocrine system is. Endocrine system क्या है? Okay. What is an endocrine system? किसी को नहीं मालूम? Consists of endocrine glands and their hormones. Endocrine consists of endocrine glands. लेकिन endocrine glands मतलब क्या है? Hormones and its effect on various organs. ओके, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड वो है जो वेरियस ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है। क्राइन सिस्टम, मतलब क्राइन मतलब होता है सिक्रीशन। तो सिक्रीशन को जब एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, ऐसे बहुत सारे हैं, दे ऑल कम अंडर द सिक्रीशन सिस्टम ऑफ द बॉडी, ग्लैंडुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। यूजुअली हमें मालूम था कि ग्लैंड्स हैं जो कुछ ना कुछ सेक्रेट करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स हुआ, ऑयल ग्लैंड्स हुए, या फिर दूसरे ग्लैंड्स हैं जो कुछ और चीज सेक्रेट करते हैं, है ना। तो ये जो ग्लैंड्स हैं व्हेन द सीक्रेट, तो द सिक्रीशन जो है उनका, इफ दैट इज यूज देयर ओनली, ये सपोज करो एक थोड़ा सा टिश्यू है, उसने कुछ चीज सिक्रेट किया और वो टिश्यू वहीं पे यूज कर लेता है, मैंने एक सेल ने सिक्रेट किया, वो सेल ही यूज कर लेता है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑटोक्राइन। और मान लीजिए एक सेल है वो सिक्रेट करता है बाजू वाले सेल को यूज कराने के लिए, तो वो कहलाएगा पैराक्राइन। अब एक सिक्रेशन है जो कहना चाहिए कि दूसरी जगह जाके काम करता है, यानी कि यहाँ रिलीज हुआ इस टिश्यू के पास
और काम कहीं और जाके करता है, यानी कि लिवर में रिलीज हुआ और काम कर रहा है वो लंग्स पे, या फिर लंग्स की टिश्यू रिलीज किया, वो काम कर रहा है किडनी पे। तो ये क्या है कि दूसरी जगह जाके ट्रांसपोर्ट होके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसको ट्रैफिक बोलते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो उस समय ये देखना है कि क्या ये किसी ट्यूब से जा रहे हैं, यानी कि उस ग्लैंड के पास कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो उस जगह तक लेके जाता है इनको, तब हम उसको कहेंगे एक्सोक्राइन। एक्सो मतलब होता है बाहर, अब ट्यूब में जा रहा है उसको भी हम एक ऐसे एक्सोक्राइन कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारी कनेक्टिव टिश्यू जो कि ब्लड है उसको यूज नहीं कर रहा, जो कि हमारा इंटरनल कनेक्टिव टिश्यू है, अपना अलग से ट्यूब बना के वो वहां पे पोर कर रहा है अपना सिक्रेशन को, तो हम उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। ठीक है। जब एंडोक्राइन मतलब हुआ कि वो अपना सीक्रेशन हमारे ब्लड में छोड़ देता है एंड ब्लड टेक्स इट टू दैट प्लेस, क्योंकि ब्लड के हर जगह से कनेक्टिविटी है, इट टेक्स इट टू दैट टिश्यू लेवल ऑफ दैट प्लेस वेयर दे हैव गॉट रिसेप्टर्स, वहां पे रिसीव करने के लिए कुछ रहता है, वो रिसीव करेंगे एंड देन द फंक्शन विल बी परफॉर्म देयर। सो ऐसा है, तो एंडोक्राइन इज दैट which involves blood as which uses blood to pour their secretion and to transport the secretion to different places for their activity। ठीक है। तो एंडोक्राइन्स ऐसे आपको मालूम होगा कि हम उनको उसमें से जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सब में से उन सभी को शायद एक और दूसरा ग्लैंड जो उनको कंट्रोल करता है, तो हम उसको बोलते थे मास्टर ग्लैंड, है ना, मास्टर ग्लैंड। अब उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये थोड़ा ओल्डर कंसेप्ट है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। अभी देखा ये गया है कि पिट्यूटरी इज नॉट द ग्लैंड which controls all the glands of the body। आज के तारीख में ये कंसेप्ट नहीं है, because they have seen, as the further studies have come up, so they have seen that there is some other place in brain which regulates the pituitary gland to control the other glands. So what is that place called? Anybody, any idea? No idea. There is a place called hypothalamus. Hypothalamus is the brain का नीचे का पोर्शन, फ्लोर ऑफ द ब्रेन, एंड टू द फ्लोर ओनली। जैसे मेरा अभी हाथ दिख रहा है, ये फ्लोर मेरा पाम जो है हाइपोथैलेमस है, और ये जो मेरा हाथ दिख रहा है ये इसी स्टॉक जैसी चीज से पिट्यूटरी वहां अटैच रहता है। So everything comes, the instructions come from this hypothalamus to the pituitary, and then pituitary releases few hormones which go to the target organs to secrete something else, right? तो इसीलिए जो बहुत समय तक कंसेप्ट था कि इट्स द बैंड मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, या फिर कहना चाहिए इट्स द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो ऐसा है नहीं। बाकी एक्सोक्राइन को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सोक्राइन के पास अपना खुद का एक पोर्टल सिस्टम है, एक पाइप है, एक कन्वेन बेल्ट है, जिससे कि वो अपना सिक्रेशन पोर कर देते हैं। तो दे डोंट नीड टू बी रेगुलेटेड, राइट? Their regulation can be of the positive and the negative feedback of the content on which they are working on। जैसे कि वो किसी कोई एक एंजाइम है, सपोज करिए कि आप लिवर बाइल है, यदि फूड अंदर आया हुआ है देन उसके ऊपर बाइल बाइल जूसेस का एक्टिविटी होनी है, तो लिवर अपने ट्यूब के थ्रू बाइल को वहां छोड़ेगा। तो द फूड विच हैज कम इनटू द इंटेस्टाइन या डियोडेनम या जेजुनम, तो वहां पे जब पहुंचता है फूड, तब वो एक इंडिकेशन है, एक ट्रिगर, एक स्टिमुलस है which would instigate the functionality of the liver to secrete the bile and to pull it into the intestine at the duodenal or the jejunal level। तो वो जो पर्पस है वो खुद जिस पे एक्ट करने वाले हैं वही उनका ही पॉजिटिव या फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म उनको रेगुलेट करता है। तो यू डू नॉट नीड टू हैव अ स्पेशल centralized control system, but there are many glands which they do not have their own transport system. So what they secrete the content, and that content is poured into blood. That means every gland which is endocrine will have a
पोर्टल सिस्टम, पोर्टल मतलब ब्लड कैपिलरीज का सिस्टम रहेगा उनके पास। हर एक ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन है तो पक्का समझ के चलिए उसके ऊपर एक पोर्टल सिस्टम रहेगा। पोर्टल सिस्टम मतलब उसके ऊपर एक कैपिलरीज का एक नेटवर्क रहेगा। The arteries and veins, they simply bifurcate and divide into small capillaries, and they from through the capillaries they pick up the content of that particular secretion. Or in some cases there are spaces, sinusoidal spaces बोलते हैं, जो लिवर में होता है। साइनस स्पेसेस पे वो ब्लड का इंटरेक्शन होता है। तो इंटरनेट आ गया है। एनीवेज मैं आप लोग आज ही भेज दूंगा, फिर इंटरनेट आ चुका है। वेल तो ऐसा है, तो स्पेसेस या प्लेक्सेस होते हैं, पोर्टल सिस्टम होता है। तो पोर्टल सिस्टम जहाँ पे कैपिलरीज का एक मेश जो कि उस ग्लैंड के पास होना चाहिए ताकि उस ग्लैंड का सिक्रेशन वो उसमें ग्लैंड उसमें पोर कर सके अपना सिक्रेशन। तो ऐसे जो जगह होती है जहाँ पे कैपिलरीज का एक नेटवर्क मिलता है उसको हम प्लेक्सेस बोलते हैं, प्लेक्सेस। और जैसे लिवर में साइनोसॉइडल स्पेसेस है जहाँ पे ब्लड और डिस्टेंस वहां पोर कर देते हैं साइनल स्पेसेस में, वहां से ब्लड पिल लेता है उनको। दे आर द बिगर स्पेसेस बिटवीन, दे आर नॉट द कैपिलरीज एग्जैक्टली, दे आर अ लिटिल मोर बिगर स्पेसेस देन द कैपिलरी वेसल्स। तो ऐसे जगहों पे ये एंडोक्राइन का जो सिक्रेशन है वो पिकअप कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा, एंड दैट इज बीन ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट ऑर्गन जहां भी है। इसलिए हम इसको ट्रॉफिक हार्मोन्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस समवेयर एल्स एंड दे एक्ट अपॉन समवेयर एल्स। तो ये चीजें हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स के और पिट्यूटरी का। अब पिट्यूटरी के एक खास बात है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिट्यूटरीज। दो टाइप के पिट्यूटरी होते हैं। एक होता है जो पिट्यूटरी जो स्टॉक रहता है, यानी कि जिसको एक स्टॉक लगा रहता है फिर पिट्यूटरी रहेगा, या एक रहता है जो स्टॉकलेस रहता है, यानी कि ब्रेन से ही जुड़ा हुआ रहता है, यहीं पे पिट्यूटरी जुड़ा रहेगा। जब स्टॉक वाले में स्टॉक नजर आएंगे और पिट्यूटरी रहेंगे, तो दैट वे जिन जो जो स्टॉक्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं लेप्टोबेसिक पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी जिनमें स्टॉक रहता है। और जिनमें स्टॉक नहीं रहता, जो सीधे फ्लोर को जुड़े हुए रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्लेटी बेसिक। तो प्लेटी बेसिक प्लेट समझने का, प्लेट मतलब स्टॉक नहीं है, सीधे जुड़े हुए हैं। तो प्लेटी बेसिक पिट्यूटरीज होती हैं जो अब हमारे इसमें लेप्टोबेसिक है, यानी कि हमारे में पिट्यूटरी में स्टॉक्ड है, ब्रेन से वो स्टॉक के थ्रू अटैच है। और जिनमें नहीं होता, तो नहीं होने वाला कोई एग्जांपल जैसे यदि आपको फिशेस का, मैंने फिशेस का पढ़ा है इसलिए मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। जैसे रोहू है, रोहू, कतला, मृगल, ये सब जो है स्टॉक्ड पिट्यूटरी इनके पास। और जो कैटफिशेस हैं जैसे क्रेस बेट्राकस या फिर गैरीपिनस, दे डोंट हैव स्टॉक्ड पिट्यूटरी, दे हैव अ प्लेटी बेसिक पिट्यूटरी, मतलब पिट्यूटरी जुड़ा हुआ रहता है। स्टॉक बहुत छोटा रहता है, मतलब दिखता ही नहीं है बाहर। एनीवेज, तो ये दो टाइप के पिट्यूटरी के टाइप्स हैं। जो स्टॉक्ड होने का एक अपना फायदा है, लाइक वो फायदा मतलब आई डोंट नो फायदा है या नहीं, बट यू नो वो कैसे होता है कि पिट्यूटरी अलग से इवॉल्व हुआ है। पिट्यूटरी हमारी क्वाड्रोजुगुलर, हमारा जो मुंह का पैलेट है ना, ऊपर का पैलेट समझते हो ना, तो वहां पे भी कभी आपने कभी उंगली लगा के छू के देखा है तो मालूम नहीं, वहां पे क्रॉस जैसा एक रिज बनती है बोन्स की, क्वाड्रोजुगुलर बोलते हैं इसको। वो एक रिज बनती है ऊपर में से, आप हाथ लगाओगे बीच में एक ऐसी रिज जाती है और एक ऐसी रिज आती है, तो वो क्रॉस होता है, ऐसे क्रॉस होता है। तो वो जो रिज है वो वहां से, वो सल्कस नाम की एक जगह होती है जो डेवलपमेंट में, वहां से वो बोन का ग्रोथ होती है जो कि पिट्यूटरी के ऊपर ठेलता है, and that tissue becomes a gland which usually controls and that gets connected to the brain। यदि वो एवोल्यूशनरी पाथ में बहुत दूर है ब्रेन वहां से, जैसे कि हमारे इसमें है ना, ब्रेन यहाँ पे है, माउथ यहाँ पे है, तो काफी डिस्टेंस है। दैट्स वाई जो एवोल्यूशन में वो स्टॉक्ड रहा है। एंड जिनमें कैसे फ्लैटेंड बॉडीज है मैक्सिमम। अभी आप देखोगे कैटफिश, कैटफिश को आप देखोगे तो हेड हेड पे वो ऐसे फ्लैटेंड है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, बॉडी फिर लैटरली फ्लैटेंड है। लेकिन अब वो क्लेरस बेट्रैक्स को सॉरी
क्लियरेंस बेट्रैकस को देखोगे तो वो लैटरली फ्लैटेंड है, हेड रीजन भी लैटरली फ्लैटेंड रहता है, तो दैट वे वहाँ डिस्टेंस होने का वो स्टॉक ज्यादा नजर आता है उनमें. Anyways, we don't need to look in so details about these types of pituitaries. तो एक मैं वो भी डायग्राम आपको दूंगा जिसमें ब्रेन के फिश का ही लिखा है, तो फिश के ही ब्रेन और पिट्यूटरी के बारे में एक ड्राइंग दूंगा मैं आपको, जो हम डिस्कशन तो कर नहीं रहे. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ होता है. तो मैं जैसे बताया आपको कि जो रिज वाली जो पोर्शन है ना, यदि आप वहां से गड्ढा करना शुरू करेंगे बोन को, तब स्ट्रेट अवे आप पिट्यूटरी पे पहुंच जाओगे. तो या फिर एक काम करिए, ऐसा करिए कि ऊपर से खोदते आइए, ब्रेन निकालिए, तो ब्रेन के बॉटम में वो पिट्यूटरी निकलेगा. जब हम फिश को डिसेक्ट करते थे तो हम वैसे ही करते थे. बेट्राकस में मैंने काफी सारा किया है. तो बेट्राकस में जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके जो माउथ है, माउथ को हम काट देते हैं ऐसा, ये जिस साइड के भी काट देते हैं तो पूरा ऐसा निकल जाता है. तो ये अपर जॉ का ऊपर वाला पोर्शन दिखता है, यहाँ पैलेट नजर आता है, यहाँ पर से क्रॉस बोनी रिजेस दिखते हैं. तो हम वहां से उसको स्क्रैप करना शुरू करते हैं. Once the bone is scraped, straight away the pituitary is exposed. नहीं तो फिर दूसरा तरीका है कि भाई ऊपर से आप निकालो इसको, पूरा स्कल को बाहर निकालो, एंड देन जो ब्रेन एक्सपोज जब हो जाएगा ब्रेन, तो उसको साइड से जो भी क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ब्रेन में से क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं ना, इसमें हमारे इसमें 12 हैं, लोअर एनिमल्स में 10 हैं. तो 10 क्रेनियल नर्व्स अलग अलग जाते हैं. ऑप्टिक नर्व को जाता है, ऑल्फैक्टरी को जाता है, और फेशियल पे आते हैं, टंग को जाता है. तो ये सब क्रेनियल नर्व्स हैं. और कुछ और कहाँ जाते हैं, कुछ निकलते हैं तो लंग्स की तरफ जाते हैं, कुछ निकलते हैं जो हमारे विसरा की तरफ, वेगस कहलाता है, वेगस. तो ये अलग अलग टाइप के जो हमारे पास 10 या 12 क्रेनियल नर्व्स हैं जो ब्रेन से निकलते हैं सबको कंट्रोल करने के लिए. तो ये जो नर्व्स है तो वो जो ब्रेन जब एक्सपोज किया तो उनको वो सब नर्व्स को कट करना पड़ता है, क्योंकि वो सबसे अटैच रहता है. तो कट करेंगे, फिर जैसे लिफ्ट करेंगे आप पीछे जो ब्रेन कहाँ चला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा इन ट्यूबुलर फॉर्म, कॉर्ड के फॉर्म में, जो कि हमारी बॉडी ब्रेक के स्पेस में वो प्रोटेक्टेड रहता है. तो हमें वो जब ब्रेन एक्सपोज करते हैं तो हम ये स्पाइनल कॉर्ड को भी कट करते हैं. एंड जो क्रेनियल नर्व से जो ऑप्टिक को जा रहा है, ऑल्फैक्टरी को जा रहा है, हमारी नाक तो नीचे है आँख से, लेकिन आप फिशेस में देखोगे तो फिशेस में कैसे, और नाक सामने है, आंखें पीछे हैं. तो ऑप्टिक नर्व अलग जाती है, और ऑल्फैक्टरी नर्व, जो ऑल्फैक्टरी मतलब ऑल्फैक्शन, स्मेलिंग, तो ऑल्फैक्शन नीचे सामने की तरफ जाती है. यानी कि लोअर एनिमल्स में ऑल्फैक्शन सामने है, देन फिर बाद में आइज डेवलप हुई तो ऑप्टिक नर्व पीछे आता है. ऑप्टिक नर्व पीछे, ऑल्फैक्टरी नर्व सामने, फिर बाद में ये जुगुलर वुगुलर बहुत सारे जो हैं, जो टंग की तरफ जाना, इसमें सेंस करने हैं. these messages, the stimulus has to be analyzed. That's why they have got special connectivity with the brain. ब्रेन पर देखा जाए तो जब न्यूरॉन्स जब जुड़ते हैं एक जगह, bunch of neurons unite at one place, that is called ganglia. Sorry, ganglion कहते हैं. यूजुअली वहां पे एनालिसिस होता है. The impulses which have come, what response should be given or should be given back to that impulse, ये सब चीजें इन गैंग्लियन में सॉरी एनालाइज होते हैं. देखा जाए तो ब्रेन एक बहुत बड़ा गैंग्लियन है, एक बहुत बड़ा गैंग्लियन है, ढेर सारे न्यूरॉन्स का एक साथ जमकर. वैसे आप देखोगे तो हमारे हर वर्ड के बीच से भी नर्व्स बाहर निकलती हैं. तो वो भी हर वर्ड के पास में भी अलग 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 गैंग्लियन है. हम उसको अलग अलग सिंपैथेटिक सॉरी नर्वस सिस्टम में काउंट करते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऐसे जो अलग अलग नाम है. वो पता नहीं अब नर्वस सिस्टम है कि नहीं आपको, या हो गया है फ्यूचर में, आई डोंट नो. तो उसको पढ़ने का है, सॉरी. दैट वे वो एक है पोर्शन है जो मैं आपको ड्राइंग भेजूंगा आप लोगों को. एंड देन उसके बाद कुछ स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स के तो मैं वो आपको पिक्चर्स में आपको सेंड कर देता हूँ. और रही बात, मेरे ख्याल से सर ने आपको पढ़ा दिया है माइक्रो टेक्निक, है ना, पढ़ाया आप लोगों को माइक्रो टेक्निक, हो गया ना. कहाँ चले गए आप लोग? यस सर.
तो मैक्रो टेक्निक जो है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? मैक्रो टेक्निक जो सर ने पढ़ाया था कि टिश्यू को रखो, टिश्यू को फिक्स करो, क्लियर करो, डिहाइड्रेट करो, फिर उसके ब्लॉक्स बनाओ, फिर कट करो, फिर सेक्शंस लो, फिर सेक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं, ये सब माइक्रो टेक्निक में आता है। द टेक्निक एट द माइक्रो लेवल, क्योंकि हम जब सेक्शंस काटते हैं उसको माइक्रोन लेवल पे काटते हैं, इसलिए हम उसको माइक्रो टेक्निक भी कहते हैं। द टेक्निक इज यूज्ड टू विजुअलाइज इनसाइड द टिश्यू, टिश्यू के अंदर देखने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं, तो उसमें यूजुअली आपने देखा है कि पहला डिहाइड्रेशन रहता है कि पानी का कंटेंट हटाना पड़ेगा, बिकॉज वाटर कंटेंट रहा टिश्यू में तो इट रॉट्स द टिश्यू, टिश्यू को खराब करता है, सड़ाता है। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हिच हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू इज वाटर। वाटर को हटा दीजिए तो अब वो अच्छा हो गया, मतलब आई मीन देयर इज नो चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शंस, देयर इज नो चांसेस ऑफ गेटिंग रॉटन। तो इस प्रकार से टिश्यू को हम प्रोटेक्ट करने के लिए, टिश्यू को हम लॉन्ग लास्टिंग या फिर इफ यू वांट टू प्रिजर्व इट फॉर longer times, so we need to remove the water. But if water is removed instantly, the tissue gets damaged. उनमें श्रिंकिंग आती है, श्रिंकेज आती है। तो टू अवॉइड डेट हम उसको स्लोली डिहाइड्रेट करते हैं ताकि वो उसका अपने स्ट्रक्चर को वो खराब ना होने दे। अब वो एक बार हमने उसको डिहाइड्रेट कर दिया तो नाउ वी हैव टू कीप देम लाइक दैट ओनली फॉर लॉन्गर टाइम। हम उसको बोलते हैं फिक्सेशन। हम टिश्यू को वैसा के वैसे फ्रीज कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो फिक्सेशन कैन बी डन विद डिफरेंट फिक्सेटिव्स, केमिकल्स हैं, केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं, उनके बेसिस पे हम उनको फिक्स कर देते हैं, जैसा स्ट्रक्चर था वैसे ही रह जाएगा। और फिर देन उसको फिर हम उसको क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ताकि फिक्सेटिव जितने फिक्स करने के बाद फिक्सेटिव को हटाना पड़ता है क्योंकि वो वोलेटाइल है, थोड़े दिन बाद वो निकल जाएगा। तो फिर हम उसको जाइलिन नाम की से क्लियर करते हैं कंटेंट को। यदि पानी कंटेंट पूरा निकल चुका है तो जाइलिन डालने से वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है। ट्रांसलूसेंट हो गया मतलब लाइट पास होनी शुरू हो जाएगी। लाइट पास होनी शुरू हो जाएगी इसका मतलब आप टिश्यू के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रोस्कोप में दिखने के लिए आपको लाइट पास होना चाहिए, जरूरी है ना उस सेक्शन में से, टिश्यू में से। और फिर उसके बाद में हम उनको कट करना चाहते हैं, तो जैसे कि आप बॉटनी में करते हो, आप पतले पतले ब्लेड से लेके सेक्शंस काटते हो। लेकिन अभी हमें यहाँ पे बहुत पतले सेक्शन चाहिए क्योंकि एनिमल स्ट्रक्चर अब सेल के ऊपर डिपेंड करता है। सेल का जो साइज है वो यूजुअली 4 से लेकर 20 माइक्रोन के बीच के सेल्स होते हैं, 4 माइक्रोन या फिर 20 माइक्रोन तक। तो वो उतने सेक्शन, इसलिए हम क्या करते हैं सेक्शंस को उस तरीके, यदि हम सेल के अंदर के पार्ट्स को देखना है, उसके अंदर के हिस्टोलॉजी को देखनी है, उसके अंदर के एनाटॉमी को देखनी है, तब हमें 4 माइक्रोन पे कट करेंगे तो सेल्स कटते जाएंगे एंड वी कैन सी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट सेल। तो उसके लिए आप कट कैसे करना है इतने बारीक में, देन वी नीड टू हैव ब्लॉक मेकिंग, हम ब्लॉक बनाते हैं उसके। आप आइस में फ्रीज करके भी ब्लॉक बना सकते हैं, बट आइस को हमारे पास उतनी टेक्निक नहीं कि आइस को उतने पतले पतले सेक्शंस में काट सकें। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड पैराफिन, पैराफिन या फिर उसके जैसे कोई भी दूसरी चीज यूज कर सकते हैं। आजकल आर्टिफिशियल कंपाउंड्स आते हैं जो ब्लॉक बनाने में मदद करते हैं। वो लो टेम्परेचर्स पे सॉलिड रहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं। अपना वैक्स भी वैसा ही है। तो हम पैराफिन को यूज करके उनके ब्लॉक्स, उसको क्या करते हैं, टिश्यू को उस ब्लॉक में एम्बेड कर देते हैं, क्योंकि टिश्यू बहुत छोटा हो जाता है, उसको हैंडल करना मुश्किल है। दैट्स वाई फॉर गेटिंग गुड रेफरेंस हम उनको एक ब्लॉक्स में, बड़े बड़े ब्लॉक्स में जिसमें हम देख सकते हैं, और फिर उस प्रकार से हम उनको कट करते हैं सेक्शंस को फिर देन नाउ अभी पैराफिन हमने एक्स्ट्रा का डाल दिया था, तो whenever we want to see the section of that particular I mean उसके स्ट्रक्चर्स को देखना है, तो we need to get devoid of that wax which has been used to make that block। तो फिर हम उनके वैक्स को हम निकालने के लिए दूसरी टेक्निक है जो आप लोगों को सर ने बताया होगा। मैं एक मिनट एक कॉल लेता हूँ, थोड़ा अर्जेंट कॉल है, 5 मिनट फॉर सम टाइम।
So am I back? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर आवाज ठीक से नहीं आ रही, हाँ, कम आ रही है आवाज। आ रही है, आवाज आ रही है ना? यस सर। Shall I continue? सर एक्चुअली वी Yes, हैव अ sir. टेस्ट नाउ ऑन 3 टेस्ट है o'clock. आपका? नहीं, आप थोड़ा जोर से बोले तो मेरे को ऐसे सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा है? एक मिनट, वन सेक, गिव मी वन सेक। हाँ, एक्चुअली यू ऑल हैव अ टेस्ट। किसका टेस्ट है आज? Sir, it's a quiz of Chemistry. chemistry. अच्छा, वन सेक, वन सेक। मेरी टेस्ट है, देखिए। अभी बोलिए आप। सर 3 बजे सर केमिस्ट्री का टेस्ट है हमारा। ओके, 3 बजे केमिस्ट्री का टेस्ट है, ठीक है। हाँ सर। तो अभी हम बंद कर देंगे, 5 ही मिनट बचा हुआ है। ठीक है, मैं मंडे मिलते हैं फिर। मंडे अपन एक काम करेंगे, अपन 11 बजे ही मिलेंगे। उसके बाद इफ एट ऑल यू ऑल फ्री एट 2 बजे तो देखेंगे, अदरवाइज विल डू लाइक दिस ओनली, अपने क्लासेस में ही करते जाएंगे। ज़्यादा नहीं है, मैं आप लोग को मैं कंटेंट भेज दूंगा और प्रैक्टिकल्स आप लोग लिख लेना, जो लिखने वाला पोर्शन में अलग से डाल दूंगा, और ये टिश्यू क्या नाम है सेक्शंस भी भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, टेस्ट की सर तैयारी कर कितना लीजिए आप लोग। लिखना है? हाँ, कितना ये लिखना है सर? दो तीन एक्सपेरिमेंट रहेंगे और उस डायग्राम्स रहेंगे, ठीक है सर। है ना। ज़्यादा नहीं लिखने को लगाते हैं, सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स वो किसी भी पेजेस में लिख लेना, उसके पीडीएफ बना देना, फिर सबमिट कर देना उसको, ठीक है। अच्छा, चेतना है ना अंदर? ओके सर। चेतना है क्या? ओके ओजस्विता। हाँ सर, हूँ ना। अरे चेतना, एग्जाम हुआ क्या तुम्हारा? वो कितने दिन से पूछ रहा हूँ मैं, तुम गायब ही हो गए पूरा। हो गया था सर वो उसी दिन, मतलब बीच में अरे टाइम उस टेबल आ दिन गया था उसके ना, मैंने हाँ, इन्फॉर्म। हाँ, मैंने अगले दिन भी क्लास में पूछा, कितने दिन से तुम क्लास में मिल ही नहीं रही हो, मैं भी नहीं आ रहा क्लास को, है ना। हाँ सर, अभी पिछली क्लास 2 क्लास तो मिस हुए मेरे, नहीं कर पाई थी मैं। ठीक है ना, ठीक है। चलो, हो गया एग्जाम, बराबर हो गया ना वो? हाँ सर, उस दिन हो गया था बराबर। चलो, ठीक, ओके देन। ठीक है सर। चलिए, ऑल में लीव। यस सर। हाँ, ओके।